Hi everyone. In this biology session, we are going to discuss the clean technology and microbes and farming from the lesson Introduction to Microbiology. So, this is the last part of this lesson. In the previous class, we have discussed the microbes and fuels, then antibiotics, then microbial pollution control. In that, we have studied landfilling sites and sewage management. So, in this class, we are going to discuss the clean technology and microbes and farming. So, let us start with the first point. So, in the clean technology, we have used some microbes for the cleaning of environment. So, there are different ways to control over the air pollution, then soil pollution and water pollution with the help of microbes. So human beings has made a very fast progress in technology, and however in environmental pollution is also increasing with the same speed. So we have to control over these types of pollutions, and microbes play important role in the control of pollution. So microbes have natural ability of decomposing the man-made chemicals. Then hydrocarbons and other chemicals are transformed with the help of these abilities. तो ये हाइड्रोकार्बन्स क्या है ये हम आगे सीखने वाले हैं. तो क्लीन टेक्नोलॉजी में मोस्टली हमें ये कंसेप्ट यहाँ पे दिया है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से हम एयर सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन पे कंट्रोल ला सकते हैं. तो जो मटेरियल्स है जिसकी वजह से ये पोल्यूशन इंक्रीज होता है, ये पोल्यूशन क्रिएट होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम यूज़ कर सकते हैं. सो कुछ माइक्रोब्स ऐसे जिनके पास एबिलिटी है कि सल्फर को वो रिमूव करते फ्रॉम फ्यूल्स. देन metals like copper, then iron, uranium, zinc, etc. leach into environment from low quality metalloids, and these compounds are converted before leaching with the help of thiobacilli and sulfobacilli. So इसका कन्वर्जन हम कंपाउंड्स में करते हैं बिफोर लीचिंग. सो with the help of microbes we can remove some substances from other substances. So द स्पेलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल्स, ये हमने देखा है कि ऑयल में ऑयल स्पेलिंग जो होता है ओशंस में, तो इसकी वजह से एक्वाटिक लाइफ जो है वो क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है. तो एक्वाटिक लाइफ के ऊपर इसका इफ़ेक्ट कैसे होता है, तो ओशन में जो ऑयल स्पिलिंग होता है तो ऑयल का लेयर जो है वो ओशन के ऊपर जो सरफेस है वाटर का तो उसके ऊपर स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से एयर और जो वाटर है उसका क्या होता है, कांटेक्ट जो है वो नहीं होता है, और जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसकी जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज़ होने लगती है. तो बहुत बार हमने ये न्यूज़ में देखा है कि जो डेड फिशेस जो है वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं सी कोस्ट पे बिकॉज ऑफ स्पिलिंग ऑफ ऑयल्स. तो ये जो स्पिलिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल है तो इसमें it becomes a fatal and toxic to the aquatic organisms. And if we go to the remove that oil layer from the surface of water by mechanical method, so this use of mechanical method is not easy to remove the oil layer from the surface of water. So we can use the bacteria like Pseudomonas species, and then Alcanovorax borcumensis. ये टू बैक्टीरियाज है, सुडोमोनास स्पेसीज एंड अल्केनोवोरेक्स बोर्क्यूमेंसिस, और इनके पास एबिलिटी है टू डिस्ट्रॉय द पायरिडेंस एंड अदर केमिकल्स. और इसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है ये यूज़ किए जाते हैं टू क्लियर द ऑयल स्पिल्स. एंड दिस बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड एज HCB. तो व्हाट इज़ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ HCB? सो HCB मीन्स hydrocarbonoclastic bacteria. HCB means hydrocarbonoclastic bacteria. सो HCB जो है या ये जो बैक्टीरियाज है ये क्या करते हैं, डिकम्पोज द हाइड्रोकार्बन्स एंड ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन, और इसकी वजह से CO2 एंड वाटर इज फॉर्म्ड इन दिस प्रोसेस.
तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन में, और इसकी वजह से ऑयल स्पिलिंग जो है वो क्या हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया आर यूज टू clear the oil spills in the oceans. After that, the plastic bottles are formed from the chemical PET. So PET means polyethylene terephthalate polyester. तो ये केमिकल सब्सटेंस है जिससे प्लास्टिक बॉटल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। सो प्लास्टिक इज अभी जो रिसेंट डेज है तो इसमें प्लास्टिक जो है ये मेन रीज़न है। गार्बेज, कार्बन गार्बेज जो है इसमें मेनली क्या होता है, प्लास्टिक होता है, और इसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि ये जो प्लास्टिक है तो उसको अगर हम नेचुरली डिग्रेड करने के लिए या इसको नेचुरल डिग्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए जो ड्यूरेशन है वो इनफाइनाइट ड्यूरेशन है। सो ये जो पीईटी है या ये जो केमिकल यूज़ किया जाता है प्लास्टिक बॉटल्स को बनाने के लिए, तो इसमें ये कुछ स्पेसीज है जैसे कि विब्रियो है, देन आइडियोनेला सैकेनेंसिस है, और इनके पास एबिलिटी है टू ये डिकम्पोज कर सकते हैं पीईटी को, जो केमिकल यूज़ किया जाता है प्लास्टिक बॉटल्स के फॉर्मेशन में। सिमिलरली कुछ स्पेसीज है फंगाई के, कुछ स्पेसीज है जैसे कि एक्टिनोमाइसिट्स है, देन स्ट्रेप्टोमाइसिस है, नुकार्डिया है, एक्टिनोप्लेंस है, एंड दे हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोजिंग द रबर फ्रॉम गार्बेज। रबर को डिकम्पोज करते हैं ये गार्बेज से। तो ये आपको स्पेसिफिक रोल और उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के जो नाम है वो आपको लर्न करने हैं इस लेसन में से। सो इसमें फर्स्ट जो हमने देखा सुडोमोनास स्पेसीज एंड अल्केनोवोरैक्स बोर्क्यूमेंसिस जो है ये यूज़ किया जाता है ऑयल स्पिल जो है ओशन में, तो उसको ऑयल स्पिल्स को रिमूव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। इनको HCB बैक्टीरियाज कहते हैं। देन विब्रियो एंड जो आइडियोनिला है तो इनको यूज़ किया जाता है पीईटी को डिकम्पोज करने के लिए। एंड जो फंगल स्पेसीज है एक्टिनोमाइसिट्स, देन स्ट्रिप्टोमाइसिस, नुकार्डिया एंड एक्टिनोप्लेंस, तो इनको यूज़ किया जाता है फॉर द डिग्रेडेशन और डिकम्पोजिंग ऑफ रबर। देन नेक्स्ट स्पेसीज लाइक एसिडोफिलियम स्पेसीज एंड एसिडोबैसिलस फेरिऑक्सीडांस, ये जो 2 बैक्टीरियाज है इनको यूज़ किया जाता है सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अब सॉइल पोल्यूशन जो कॉज होता है जिसकी एसिड रेन की वजह से जो भी सॉइल पोल्यूशन होता है, तो इस सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ये एसिडोफिलियम स्पेसीज एंड एसिडोबैसिलस फेरिऑक्सीडेंट्स को यूज़ किया जाता है। तो एसिड रेन मतलब सल्फ्यूरिक रेन जो प्रेजेंट होता है, एसिड रेन एंड कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो कि माइन से भी आते हैं, तो ये अगर सॉइल में मिक्स हो जाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया, ये जो नाम यहाँ पे दिए हैं तो एसिडोफिलियम एंड एसिडोबैसिलस है, तो ये क्या करते हैं एज एनर्जी सोर्स ये सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ करते हैं, और ये बैक्टीरिया हेल्पफुल है पोल्यूशन कंट्रोल में जो कि बिकॉज ऑफ एसिड रेन होता है। सो दिस इज़ द पार्ट अबाउट क्लीन टेक्नोलॉजी। द नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज माइक्रोब्स एंड फार्मिंग। सो फार्मिंग के प्रोसेस में माइक्रोब्स का क्या यूज़ होता है। सो माइक्रोब्स यूज्ड एज अ माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स। सो इसमें अगर हम देखते हैं तो ये प्रोसेस की जाती है फर्मेंटेशन की, और इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस से ये माइक्रोब्स कंटेनिंग इनोकुलेंट जो है वो क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। अब इसको कैसे यूज़ करना है। सो दिस इनोकुलेंट्स आर स्प्रेड ऑन सीड्स बिफोर सोइंग इन द सॉइल एंड सम ऑफ द इनोकुलेंट्स आर रिलीज्ड इनटू प्लांट्स। जैसे माइक्रोब्स इन द इनोकुलेंट्स हेल्प्स इन प्लांट ग्रोथ बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट। जो भी इनोकुलेंट हम सीड्स के ऊपर स्प्रे करने वाले हैं तो वो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं उन प्लांट्स को, एंड एज वेल एज दे इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ वेजिटेरियन फूड ऑल्सो। सो द सोल्यूशन कंटेनिंग अजोटोबैक्टर एंड आर्टिफिशियल नाइट्रोजनस इज यूज्ड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग हम देखते हैं कि जिसमें विदाउट केमिकल्स जो फार्मिंग किया जाता है, तो उसमें ये अजोटोबैक्टर का सोल्यूशन और जो आर्टिफिशियल नाइट्रोजनस है तो इसको यूज़ करके ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। तो सम बैक्टीरियाज है जैसे कि सॉइल पोल्यूशन जो होता है केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये माइक्रोबियल इनोकुलेंट्स क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। सो फ्लोरो एसिटामाइड लाइक केमिकल जो है वो मिक्स किए जाते विद द सॉइल ड्यू टू यूज़ ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर।
हमने देखा है कि पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स या फिर वीडिसाइड्स है तो उनको लार्ज अमाउंट में यूज़ किया जाता है फॉर द कंट्रोल ऑफ दिस हार्मफुल पेस्ट एंड इंसेक्ट्स। बट ये जो केमिकल है वो क्या हो जाते हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स में जो भी केमिकल्स है वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं और दिस केमिकल्स प्रूव टू बी हार्मफुल टू अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। तो इसकी वजह से ह्यूमंस में भी कुछ स्किन डिसीजेस हो सकते हैं। सो दिस पेस्टिसाइड्स इन द सॉइल कैन बी डिस्ट्रॉय विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। तो इसके लिए भी माइक्रोब्स हेल्पफुल है, ये क्या करते हैं, इसको डिस्ट्रॉय करने का रोल प्ले करते हैं। देन द लास्ट पार्ट इज बायो इंसेक्टिसाइड्स। तो जैसे केमिकल इंसेक्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं इंसेक्ट को किल करने के लिए, वैसे बायो इंसेक्टिसाइड्स हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें बैक्टीरियल एंड फंगल टॉक्सिन्स विच कैन डिस्ट्रॉय पेस्ट एंड पैथोजेंस कैन बी डायरेक्टली इंटीग्रेटेड इनटू प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। जो भी हमने बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट देखा है तो उसमें ये हमने पढ़ा है कि ऐसे कुछ बायोटेक्नोलॉजी की जो मेथड्स है इनकी हेल्प से हम ऐसे टॉक्सिन्स को उसमें इंजेक्ट कर सकते हैं कि जिसकी वजह से ये जो पैथोजन या पेस्ट है इनमें अगर इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये टॉक्सिन उनके कंज्यूम करने की वजह से एंट्री करता है तो इसकी वजह से उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। एंड बीइंग टॉक्सिक टू इंसेक्ट्स दे डू नॉट कंज्यूम द plants. Similar to bacteria, some species of fungi and viruses are useful as pesticides also. And spinosad, a byproduct of fermentation, is a biopesticide. यहाँ पे एक नाम दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है स्पिनोसैड, तो ये जो है तो ये बाय प्रोडक्ट है फर्मेंटेशन का जो कि एज अ बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ किया जा सकता है। So this is about the microbes and farming, and in that we have discussed the microbial inoculants and bioinsecticide. This is the last part of this lesson. We have completed this lesson. So the homework for this concept is write down the name of microorganism and their role in the environment cleaning, as well as write a note on microbes and फार्मिंग। उसमें आपको माइक्रोबियल इनोकुलेंट एंड बायो इंसेक्टिसाइड्स के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो क्या करने हैं, मेंशन करने हैं।